Hey guys, welcome to my YouTube channel Study Basic Education. So friends, I welcome you all to this new session by Study Basic Education on the topic Story Writing for classes 6th, 7th and 8th. Yes friends, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टोरी राइटिंग के कुछ पॉइंट्स के बारे में for classes 6th, 7th and 8th. So why to wait? Let's get started. So once again, welcome to the class. So first of all, as usual, we will be discussing about today's agenda, that what we are going to discuss today in this video. So my dear friends, first of all, we will discuss about what is story writing. Yes, हम story writing लिखते तो हैं, we write a story, but we don't know what is a story writing, right? So in this slide, we will discuss about that what is a story writing. Then after this definition, we will proceed towards the what are types of story writing. Yes, हमारे पास types भी हैं story writing के. हम लोगों को basically सिर्फ यही पता होता है कि we have a story and we have to write a story, just this. But in this video, I will also tell you the types of story writing and much more. Then we have at the third, points to remember when writing a story. Yes friends, in this slide, I will tell you some tips when you are writing a story which must be remembered by you, right? Then we have the last, format or structure of story writing. So basically हमारा कोई official या फिर promotable जो हमारा structure है वो नहीं है story writing का, but we have a common story writing structure that we will discuss in this video today. So let's get started. So yes, finally we have reached our first point, that is what is story writing exactly. Yes friends, आपको ये चीज़ बहुत rare teachers आपको explain करेंगे कि what is story writing exactly. They people will only tell you that you have to write a story on this topic, right? आप लोगों ने observe भी किया होगा, till now no teacher have been telling you that what is a story writing exactly. But why to worry? Study Basic Education is with you, right? So let's get started. So first point is that a story is basically a narration of real or imaginary events involving real or imaginary people. Yes friends, जो हमारी story होती है, that is basically a narration, means ये एक जो हमारी story है वो एक narration होती है, means किसी चीज़ कोई वारदात के बारे में बताने के लिए जो हम words लिखते हैं, that is a story, right? ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, मीन्स मनगढ़ंत भी हो सकती है. मतलब कि इमेजिनरी मीन्स मनगढ़ंत, राइट? लाइक हम लोग कुछ स्टोरीज जो हैं वो अपने आप फॉर्म कर देते हैं, जैसे किसी घोस्ट की स्टोरी होती है, भूत की कहानियाँ होती हैं, दे आर इमेजिनरी स्टोरीज, राइट? सो दे आर फ्रॉम इमेजिनरी इवेंट्स. सो हमारी जो स्टोरीज होती हैं दे कैन बी रियल और इमेजिनरी, एंड इसमें रियल या फिर इमेजिनरी पीपल भी हो सकते हैं. जैसे कि आपकी कुछ मूवीज़ होती हैं, कुछ मूवीज़ जो होती हैं वो रियल होती हैं, रियल स्टोरीज़ पे बेस्ड होती हैं, बट कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि इमेजिनरी होती हैं, राइट? जो कि राइटर्स जो हैं वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली उनको फॉर्म करते हैं. सो दे ऑल आर स्टोरीज ओनली, ठीक है? So basically a story is a narration, just this, right? Then we have the second point, even images or moving pictures, movies can narrate a story. यहाँ तक कि जो हमारी images होती हैं, कुछ images होती हैं या फिर कोई movie है, पिक्चर होती है, फिल्म जिसको हम बोलते हैं, ये सब भी कोई ना कोई स्टोरी को नरेट करते हैं, ठीक है? कुछ इमेजेस होती हैं, जैसे कि आपको बहुत बार आपने अपनी स्मॉल स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा, आपको कुछ इमेजेस दी जाती हैं कि इन इमेजेस से आपको देखकर स्टोरीज लिखनी है. सो यहाँ पर वो जो इमेजेस हैं वो आपको पूरी स्टोरी डिफाइन कर सकती हैं, राइट? सो इमेजेस और जो हमारी मूवीज होती हैं दे आर ऑल्सो नरेटिंग स्टोरीज, right? Then we have the last point of this slide, that a story is generally designed to entertain and or send a message across. So हमारे पास जो story होती है वो हमें ये पता चला story होती क्या है. Story images में भी हो सकती है, movies में भी हो सकती है, written में भी हो सकती है, ये भी हमें पता चला. लेकिन why do we have a story? So basically जो हमारा main idea है story का, that is to entertain,
ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए हमारी स्टोरी राइटिंग हम लिखते हैं, या हम मूवीज को देखते हैं, या किसी इमेज से हम स्टोरी को नरेट करते हैं। एंड इसका सेकेंड रीज़न ये भी है कि टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस, कुछ ऐसी भी हमारे पास स्टोरीज होती हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, राइट। जैसे कि आप लोग कुछ मोरल स्टोरीज देखते हैं, आप लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत सारी स्टोरीज थी ऐसी जो हम लोगों ने स्टडी की हैं। सो ऑल ऑफ देम आर जस्ट टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस, राइट। सो हमारी जो स्टोरीज हैं वो एंटरटेन करने के लिए और सेंड अ मैसेज अक्रॉस के लिए भी यूज की जाती हैं। So now again a very rare topic, that is types of story. Yes friends, types of story. So generally we can divide stories into two very broad categories, that are fiction stories and non-fiction stories. Yes friends, हम generally जो हैं stories को दो part में divide कर सकते हैं, दो बहुत broad categories में divide कर सकते हैं, which are फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। यस, इनको अच्छे से नेम्स को लर्न कर लीजिए कि फिक्शन स्टोरीज होती हैं एंड नॉन फिक्शन स्टोरीज होती हैं। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्टोरीज, राइट। सो अब देखते हैं इनकी डेफिनेशंस या फिर इनको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिक्शन स्टोरीज। फिक्शन स्टोरीज आर बेस्ड ऑन मेड अप और इमेजिनरी इवेंट्स। यस फ्रेंड्स, जो हमारी फिक्शन स्टोरीज होती हैं वो मेड अप और इमेजिनरी इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। मैंने आपको इमेजिनरी वर्ड से अभी लास्ट स्लाइड में भी वाकिफ कराया, दैट इज कि इमेजिनरी मीन्स मनगढ़ंत। जिस चीज को हम इमेजिन करते हैं दे आर मीन्स मनगढ़ंत कहानियां, राइट। सो जितनी भी चीजें, जितने भी इवेंट्स हुए नहीं हैं लेकिन हम उनके ऊपर कोई स्टोरी बना देते हैं, उनके बेस पर कोई स्टोरी बनाते हैं, दे ऑल आर फिक्शन स्टोरीज, राइट। सो फिक्शन स्टोरीज आर imaginary. Then we have non-fiction stories, that is non-fiction stories can cover any kind of real life event or experience. Yes, so हमारा fiction stories से बिल्कुल opposite है हमारा non-fiction stories, that are कि हमारी जो non-fiction stories हैं वो किसी भी तरीके का can cover any kind of real life event और experience. जो हमारी नॉन फिक्शन स्टोरीज हैं वो कोई भी रियल इवेंट या एक्सपीरियंस को कवर करती हैं, जैसे कि हमारी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जो कि किसी पर्सन या किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड होती हैं. सो दे ऑल आर नॉन फिक्शन स्टोरीज. which are real are non fiction stories and which are imaginary they are fiction stories. Right? So this was very easy to differentiate between fiction and non-fiction. So now we have the another point, that is points to remember when writing a story. ठीक है? So points to remember when writing a story. So हमारा first point हम देखते हैं, that is length should be according to the question paper, depends on the weightage of marks. Yes friends, जो हमारी story की length है वो depend करती है question के ऊपर. Yes, question paper में question किस हिसाब से दिया गया है, कितने मार्क्स की जो आपकी स्टोरी है वो है, राइट. सो मान लीजिए कोई 5 मार्क्स की स्टोरी है तो एटलीस्ट आपको 25 to 30 लाइंस लिखनी चाहिए. इस तरीके से जो आपकी लेंथ है स्टोरी की वो डिपेंड करती है मार्क्स के ऊपर, ना कि आपकी स्टोरी कितनी लंबी आपको खुद को चलानी है. नो, अगर क्वेश्चन पेपर में आपको वेटेज ऑफ मार्क्स जो है वो ज्यादा है तो आप छोटी स्टोरी लिखोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट होंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट दिस कि लेंथ जो है वो डिपेंड करेगी वेटेज ऑफ मार्क्स के ऊपर. देन वी हैव द सेकेंड पॉइंट, दैट इज if starting line or ending line is given, it has to be started with or ended with the same line. Do not write anything before or after. So हमारे पास कुछ ऐसे questions होते हैं जिनमें starting line और ending line जो है वो given होती हैं. So इन्हीं लाइन से हमें एंड या स्टार्ट करना चाहिए अगर हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन गिवन है. हमें इसमें कुछ भी पहले या बाद में नहीं लिखना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो टीचर के अकॉर्डिंगली डिडक्ट हो सकते हैं. ठीक है. देन हमारा थर्ड पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कॉमन, दैट इज अ टाइटल शुड बी गिवन. हर एक स्टोरी का टाइटल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब कि वो स्टोरी किस बारे में है आपको सेंटर ऑफ द पेज में ये चीज लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसके बाद हमारा फोर्थ है हैव अ क्लियर एंड डेफिनेट आइडिया अबाउट द प्लॉट ऑफ द स्टोरी. यस फ्रेंड्स,
आपकी स्टोरी को पढ़कर बिल्कुल क्लियर एंड डेफिनेट आइडिया पता चलना चाहिए कि आपकी स्टोरी एग्जैक्टली आप बताना क्या चाह रहे हो, आपकी स्टोरी एग्जैक्टली है किस चीज के बारे में। सो हमारी जो स्टोरी है उसका क्लियर एंड डेफिनेट आइडिया होना चाहिए कि वो स्टोरी है किस बारे में, राइट। नाउ वी हैव द अनदर पॉइंट टू रिमेंबर, दैट इज यूज डायरेक्ट स्पीच इन द स्टोरी। यस फ्रेंड्स, हमारे पास स्पीच जो होती है दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होती है मीन्स जो हम वर्ड्स हैं किसी पर्सन के, उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वही बोल देते हैं या लिख देते हैं, सो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। एंड इनडायरेक्ट होती है जिसमें हम अपनी कुछ भाषा को, उसको, उस बात को अपनी भाषा में ढाल कर हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट। सो हमें बेसिकली जो स्टोरी है उसमें डायरेक्ट स्पीच ही यूज करनी चाहिए। सो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूज सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। सो हमें एक स्टोरी राइट करते वक्त या तो सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज करना चाहिए। अगर आप इससे अलग हटेंगे, इन दो टेंस से अलग हटेंगे, सो आपकी जो स्टोरी है उसमें मार्क्स डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगी एंड इट विल बिकम रॉन्ग फॉर यू, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज create 2 to 3 characters only and the situations should be natural and interesting। yes friends, जो हमारी, मान लीजिए कोई आप फिक्शन स्टोरी बना रहे हैं, कोई इमेजिनरी स्टोरी बना रहे हैं, सो उसमें आपके सिर्फ 2 या 2 से 3 जस्ट दिस, इससे ज्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके नहीं होने चाहिए, और जो सिचुएशन आप बना रहे हो वो थोड़ी नेचुरल लगनी चाहिए, इतना बेकार ना हो कि आपको जो आपकी जो स्टोरी है उसको कोई जो रीड कर रहा है उसको साफ साफ पता चले कि इसने ये ऐसे ही बनाई है, अपना दिमाग ऐसे ही खराब किया है इसने एंड हमारा भी कर रहा है। सो आपको ये बिल्कुल नेचुरल करना है एंड जो आपकी स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। उसके बाद यूज डिस्क्रिप्शंस, व्हाट वी सी, हियर, स्मेल एंड टेस्ट। सो जो आप स्टोरी लिखते हैं उसमें इस चीज का भी ध्यान रखिए कि मान लीजिए कहीं पर कुछ आप दिखाने की बात कर रहे हैं तो वही चीज लिखिए जो आप देख सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ मत लिखिए जैसे कि भूतों का लिख देते हैं लोग, आपकी परियों का लिख देते हैं। सो इस टाइप की चीजें आपको नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके के डिस्क्रिप्शंस यूज नहीं करते हैं, जो आप देखते हैं, सुनते हैं या टेस्ट करते हैं, सो वो जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग नहीं होती है, नेचुरल नहीं लगती है। एंड इट इज मस्ट कि हमारी जो स्टोरी है वो नेचुरल लगे, राइट। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है जो रिमेंबर करने का है, दैट इज इंक्लूड एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स। सो जो हमारी स्टोरी है उसमें एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। जितने छोटे छोटे पैराग्राफ्स आप लेंगे उतना गलत है। कुछ पैराग्राफ्स छोटे लेने चाहिए, कुछ पैराग्राफ्स बड़े होने चाहिए, बट 3 तो मस्ट है कि 3 तो होने ही चाहिए। चाहे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको गिवन है, चाहे आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन आपके 3 पैराग्राफ्स मस्ट हैं, राइट। So now last point of this video, that is structure or format of story. Yes, structure or format of story. While there is no given format as such for story writing, this is a basic structure one can follow. So जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारे पास कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो कि ऑफिशियली प्रमोट किया जाता है या ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया हो स्टोरी राइटिंग के लिए। लेकिन हम इस फॉर्मेट को जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो इट इज मच बेटर टू राइट अ स्टोरी, राइट। सो सबसे पहली जो आपका फॉर्मेट में आता है दैट इज टाइटल। यस, सबसे फर्स्ट प्लेस पर आपको सेंटर ऑफ द पेज में लिख देना चाहिए स्टोरी का टाइटल, कि जो स्टोरी है वो किस बारे में है। देन बिगिनिंग, यस बिगिनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में भी बताया, अगर आपको बिगनिंग दी हुई है, स्टार्टिंग लाइंस दी हुई हैं, तो उन्हीं से स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज जो आपकी स्टोरी की बिगनिंग है वो बहुत ज्यादा जो आपकी इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारा एक प्रोवर्ब भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी बिगनिंग ही अच्छी नहीं होगी तो जो आपका पर्सन है, जो आपका जो रीडर है, वो उसकी लाइन, फर्स्ट लाइन रीड करते ही उसका मूड खराब हो जाएगा, जो आपका एग्जामिनर है उसका मूड खराब हो जाएगा एंड वो नीचे की स्टोरी खराब मूड में रीड करेगा, तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो सकते हैं, राइट। सो आपकी बिगनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग,
देन थर्ड है हमारा कैरेक्टर्स। सो आपको थर्ड चीज में फर्स्ट पैराग्राफ में आपका बिगनिंग आ जाती है, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ आता है उसमें आपको कैरेक्टर्स भी डिफाइन करने चाहिए। कुछ ऐसा तरीका बनाइए, कुछ इस तरीके का माइंड यूज कीजिए कि आप कुछ बातों में सारी जितनी भी स्टोरी है उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन कर दें। एंड कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, आपको अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया 2 से लेकर 3, या तो 2 या 3, ठीक है, इतने ही आपके कैरेक्टर्स होने चाहिए। एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। 1 कैरेक्टर अगर आप करेंगे तो वो स्टोरी जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कैरेक्टर्स के बाद प्लॉट। यस, प्लॉट मींस जो आपकी स्टोरी है, आप जो बात बताना चाह रहे हो, ठीक है, जो आपका आइडिया है स्टोरी का, वो होता है प्लॉट। सो वो चीज आप लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में क्लाइमैक्स या कंक्लूजन। क्लाइमैक्स होता है कि जो आपका लास्ट में कुछ सडनली वाली चीज हो, सरप्राइज करने वाली चीज हो, सो दैट इज क्लाइमैक्स। और कंक्लूजन होता है निचोड़, ठीक है, मतलब जो स्टोरी है उसके लास्ट में कुछ ऐसा लिखिए जिससे कि आपकी पूरी स्टोरी का एक कंक्लूजन निकल के आ जाए कि यहां पर स्टोरी इस तरीके से एंड हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टोरी बीच में कहीं पर भी छोड़ दिया आपने, नो, उसको कंप्लीट कीजिए। उसका एक कंक्लूजन या क्लाइमैक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन, इट इज वेरी डर्टी। सो यस, एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं स्ट्रक्चर या फॉर्मेट स्टोरी का। दैट इज कि पहले टाइटल आएगा, उसके बाद बिगिनिंग आएगी, उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो हमारा प्लॉट ऑफ द स्टोरी है उसको हम डिफाइन कर देंगे, उसके बाद हमारा क्लाइमैक्स या कंक्लूजन जो है स्टोरी का वो हम लास्ट एंड में कर देंगे, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। So now at the end of this video, I would say thank you for joining today's class, and for more such interesting classes, please subscribe to the channel Study Basic Education, and please hit the like button if you like the video, and share the video with your relatives and loved ones, and post your questions in the comment box. Thank you.